कंठे विराजो वेदांत उच्चराओ सवड़ी भाषा। कंठी विराजो वेदांत उच्चराओ सवड़ी भाषा। कंठे विराजो वेदांत उच्चराओ सवड़ी भाषा। कंठी विराजो वेदांत उच्चराओ सवड़ी भाषा। सन्मुखे सरस्वती माता सुधरामो मनवाणी भाषा। सन्मुखी सरस्वती माता सुधरावो मनवाणी भाषा। कंठे विराजो वेदांतम् उच्चराओ सवड़ी भाषा। कंठी विराजो वेदांतम् उच्चराओ सवड़ी भाषा। काळजो काळजो तारा तोड़ी मन कुले काटा। पोते पोताना जो आवड़िया वाणी खाजा। पोते पोताना जो आवड़िया वाणी खाचा। कंठे विराजो वेदांतम् उच्चराओ सवड़ी भाषा। कंठी विराजो वेदांतम् उच्चराओ सवड़ी भाषा। सत्तावे भंजन योगे सत्ताने भाषा प्रयोगे वपराटा गाढ़ निर्दोषी वाणी मीठा। संस्कारे मातृ निर्दोषी वाणी मीठा। संस्कारे माधुरीशाता। कंठे विराजो वेदांतम् उच्चराओ सवड़ी भाषा। कंठी विराजो वेदांतम् उच्चराओ सवड़ी भाषा। चारित्र बड़े चारित्र बड़ने नियोड संचारी करे आचा। भिक्षार उच्चारणे आचरणे वर्ताओ परमात्र शास्त्र। भिक्षारुच्चारणे आचरणे वर्तावु परमात्र शास्त्रा। कंठे विराजो वेदांतम् उच्चराओ सवड़ी भाषा। कंठी विराजो वेदांतम् उच्चराओ सवड़ी भाषा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय Hi, Chatar. सच्चिदानंद। Very good. Hey, जय सच्चिदानंद। દિવ્યા મહેશ દાદા તમારી ઘરે આવ્યા છે યુએસએ માં? हाँ હે? એમના ઘરે મળ્યા છે ક્યાં અમેરિકામાં લોસ એન્જલસમાં આવ્યા છે? ના હા તો ઇન્ડિયામાં હા ઇન્ડિયામાં
તું ઇન્ડિયામાં પહોંચી ગઈ? હા હે? કેમ પહોંચી એવું ગઈ કર્યું? કેમ એવું કર્યું? ઇન્ડિયામાં કેમ પહોંચી ગઈ? હે? કે ખબર 10 યર અહીંયા રહેવા આવવાનું છે ને હા, એટલે એમાં એને ઇન્ડિયા બહુ ગમે છે હવે હવે ઇન્ડિયા જ રહેવાની છે. હમણાંથી નહીં તો પછી હા, તેરું કેમ? ફરી જાય ને અને પછી ત્યારે ઓકે, તારા હાથ કેમ રંગેલા છે? મહેંદી ઓ, કરીને મહેંદી છે. ઓ, મેં કહ્યું કે કલર કર્યા કે શું? કેમ મહેંદી કર્યા? કોઈના પપ્પા લગ્નમાં પપ્પા અહીંયા જવાનું? રહેવાના છે. પપ્પા અમેરિકા વર્ક ફ્રોમ હોમ અહીંયા ઇન્ડિયાથી કરશે અને દિવ્યાબેન અને મમ્મી ત્યાં રહેવાના છે. ઓ, કારણ કે પપ્પાએ તો સત્સંગમાં આવવું છે એવું મહેશ દાદા કહેતા હતા. પૂછી જો મહેશ દાદાને. ए પ્રોબ્લેમ થઈ छोटी ગઈ? कहाँ है? ઘરે પાછા જવાના. ये तो छोटी तो मस्ती करती है, ले गई। पढ़ाई कर रही है। वो किधर गई मोनिका? इसका पढ़ रही है, कल नाम क्या उसका है? वो क्या पढ़ है रही है, उसका? स्टडिंग। कल उसका ये छोटी का नाम क्या है? भूविका, अनुज की छोटी भूविका, बहन। भूवी का मैं भूवी भूवी ए भूविका। भूवी का हाँ अनुज नहीं आया है? अनुज बड़ी माँ के घर अनुज है। नहीं आया है? नहीं, बड़ी मम्मी वेर के इज घर है। अनुज? बड़ी माँ के घर है। अच्छा अच्छा ओके. ઓકે. દિવ્યાબેન, તમે કેમ મહેંદી નાખી છે? કોઈના લગ્નમાં જવાનું છે? ના મેં લગ્ન માટે આવ્યા ને ત્યારે મહેંદી કરેલી પછી મહેંદી ખાલી ને તો કલર પછી નીકળતો જ નથી ને ઘણો બધો નીકળ્યો પણ ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। ओके, तो अभी तो टाइम हो गया है ऑलमोस्ट। ओके, नव कलम में फास्ट बोलेगा। नव कलम आवड़े दिव्याबेन? चलो चिनाई नव कलम बोल जाओ। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે ના દુબાય કે દુબહા પ્રત્યેના અનમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે એવી સાદ્વાદવાની સાદ્વાદ વર્તન અને સાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુબે ન દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુબે એવી સાદ્વાદવાની સાદ્વાદ વર્તન અને સાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક સાધુ साध्वी के आचार्य अवनवाद अपराध अविनय न करने की परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો અભાવ તિરસ્કાર ન किया जाए न करवाया जाए કે કરતા કે પ્રતિના અનમુદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા તંતીલી ભાષા ન બોલી જાય ન ભૂલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યેના અનમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી પુરુષ અગર નપુંસક ગમે તે લિંગારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો ઈચ્છાઓ ચેષ્ટાઓ યા વિચાર સંબંધી દોષો ન किया जाए न करवाया जाए કે કરતા કે પ્રતિના અનમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણો ના કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવંત અથવા મૃત્યુ પામીનારો કોઈને પણ કિંચિત માત્ર પણ
अवर्णवाद, अपराध, अविनय न किया जाए, न करवाया जाए કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનો નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन त्रिमंत्र बुलाइए। नमो वितरागाय નમો વિતરાગાય, वितरागाय नमो अरिहंतानम नमो નમો અરિહંતાન, हरिहंताणम नमो सिद्धानम નમો સિદ્ધાનમ, नमो आयरियानम નમો આયરિયાનમ, नमो वज्रायनम નમો વત્સાયાનમ, नमो लोए छाहुनम નમો લોહે સવ સાહુનમ, ऐछो पंचनमुकारो એસો પંચનમુક્કારો, सर्वपावपनाशनो સવ પાવપનાસનો, मंगलानं च सर्वेशं મંગલાનાં ચ સૌવેસે, पठमं हवै मंगलम् પરમં હવૈ મંગલમ. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ॐ नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद जय જય जय સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद। ओके, डेली प्रेयर एंड स्टडी प्रेयर। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे। ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय कायो और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही कर, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भूमिका, दिव्या, हे दादा भगवान। हे दादा भगवान हे हे दादा दादा भगवान, भगवान, हमने आपके बच्चे हम हम मैं हम आपके हैं आपके बच्चे, बच्चे दिल के सच्चे दिल के दिल के हैं सच्चे, पैर भी है कच्चे पीर भी है दिल भी है कच्चे, कच्चे। अच्छे अच्छे काम हम करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे अच्छे। अच्छे। वेरी गुड। गीता सेवा, expression prayer. Let's Samratu. हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, हितक्षिबा अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, हितक्षिबा रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, हितक्षिबा टेम्पररी है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Very good. Okay. कल का होमवर्क क्या था? खुशी,
आप सुनते हैं ना, बोलो। नहीं सुना। नहीं, मोनिका, दिस प्लेस इज गुड। आपका रिसेप्शन बहुत अच्छा है ये जगह। क्या कहा दादा? आपका रिसेप्शन इधर बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है, वेरी गुड। और आपको मालूम है कि दिव्या बेन ने 2 पद गाए थे दादा के जन्मदिन के दिन? नहीं दादा। नहीं, क्या करते हो? हे दिव्या बेन, क्यों हो तू? मजा આવી? અને પદ ગાવાની બરાબર મજા આવી? हाँ ओके, वेरी गुड। ओके, होमवर्क क्या मालूम है तक मोनिका? आप लोग स्कूल आप लोग स्कूल में जाते हैं तो टीचर पूछते होमवर्क क्या था, तो आपको नहीं याद नहीं रहता है? दादा वो हाँ, बोलो ऐसा हिताक्षी बा। हाँ, हिताक्षी बा। हाँ, आज का होमवर्क ये था कि आज पूरे दिन में बन्यू तेना न्याय का उपयोग कहाँ किया। मोनिका, वही होमवर्क था? क्या कहा दादा? आप होमवर्क जो हिताक्षी बा ने बताया वही ही था? हाँ, और मेरा वो करिश्मा के साथ कैसा हुआ वो भी था। ओके, ओके, बोलो। हाँ मोनिका, जय बोलो बोलो, सच्चिदानंद। कैसे रहा हाँ सारा दिन? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज सुबह मैं करिश्मा के साथ लड़ाई होने वाली थी, और उसने कुछ बीच में मुझे टकराव आया था, फिर भी मैंने उसे मैंने गुरुतम भाव भी नहीं किया, और वो छोटी है तो एडजस्ट हो जाने का। तो वहां पर मैंने चिक चिक नहीं की बिल्कुल। और घर पर स्कूल में थी तो वो हमेशा मुझे देखती है तो हाय करती रहती है। तो मुझे उस समय थोड़ा अभाव हुआ क्यों वो ऐसा करती है। और जब मैं घर पर आई तो उसके साथ बहुत अच्छा ही गया व्यवहार। आज मैंने उसके साथ चिक चिक ज्यादा नहीं की। Oh, very good. Keep it up, keep it up. हिताक्षी बा। जय सचिदानंद। आज स्कूल में एक बार मैं मैम को अपना एंकरिंग में रहने के लिए पूछने गई थी, तो मैम ने मना कर दिया था। तो तब मैंने सोचा कि जो हुआ अच्छा हुआ होगा, कोई बात नहीं, भले सिलेक्ट ना किया हो। नहीं, अच्छा हुआ नहीं, न्याय जो हुआ वो न्याय न्याय। न्याय हुआ। ओह, वेरी गुड। खुशी, आपको तो मालूम, होमवर्क नहीं मालूम था ना? ओके, ओके, वेरी गुड। तो अभी आ, महेश दादा, अभी नया हाँ। टॉपिक लिया है, हम्म। हुआ वो न्याय, बन्यू ते न्याय। हुआ सो न्याय, बनी थी हम्म न्याय। है। तो बराबर। जरा जरा उसको विस्तार करो कि न्याय का हम्म। किधर क्या है। और एक सूत्र भी है। क्या है दूसरा? एक सूत्र भी आया था, कुदरत के हम्म। न्याय को। तो कुदरत का हम्म। न्याय क्या है वो जरा बता दो। कुदरत के न्याय को यदि समझेंगे तो आप इस जगत से छूट पाएंगे। तो ये अन्यथा कुदरत को थोड़ा सा भी अन्याय समझेंगे तो आप जगत में उलझ कर ही रह जाएंगे। हम्म, यानी कि कुदरत का न्याय जो है ने। મહેશભાઈ जी, એટલે हाँ। कुदरत क्या है और न्याय क्या है उसका कैसे हम समझ हम्म। सकता है उसका न्याय यार, थोड़ा अभी अच्छा। बात कर दीजिए। हाँ, कुदरत के न्याय यानी कुदरत क्या है? एक संजोग, सब इकट्ठा होता है। जैसे बारिश आता है तो कुदरती गर्मी पड़ती है, ठंडी पड़ती है। कुदरत एक साइंटिफिक सर्कल में एविडेंस इकट्ठा होता है। तो ये कुदरत के न्याय यानी कि कुदरत यानी कि ये अपने आप होने वाली चीज, इट सेल्फ बट नेचुरल। कुदरत यानी कि सूर्य, चंद्र, तारा, रात, दिन,
जो होता रहता है ये कुदरत है, कुदरती है और कुदरत है। तो उसको कुदरत के न्याय को यदि समझेंगे, यानी कुदरत का न्याय क्या है? कुदरत का न्याय जो भी अपने साथ जो भी कुछ होता है, अच्छा बुरा, गर्मी ठंडी, इमोशनल डिप्रेशन, विचार आना, खराब आना, अच्छा आना, जो भी कुदरत के न्याय को यदि समझेंगे तो आप इस जगत में छूट जाएंगे। यानी कुदरत का न्याय क्या है? दादा भगवान ने क्या बताया कि हुआ जो भी संजोग आता है वो कुदरत ही आता है, मगर पहले से नहीं बोलने का। बाद में जो वो कुदरत के न्याय के शकंजे में हम आए, यानी कि हमारा कर्म उससे जुड़ा हुआ है, तो कुदरत के न्याय यानी कि जो होता रहता है वो कुदरती है, उसका न्याय है, मगर होने के बाद बोल सकते हैं कि हुआ सो न्याय। तो उसके पहले ग्लास अपने हाथ में है, पानी पीते हैं कांच का ग्लास, और पानी पीते पीते ग्लास छटक गया और टूट गया, तो वो अंदर समझना है हुआ सो न्याय। बाहर तो ऐसा पूछे कि आपके हाथ से गिलास टूट गया, तो अपने को ऐसा नहीं बोलने का हुआ सो न्याय, अपने को अंदर रखने की चीज है। और बाहर तो ऐसा बोलने का कि मेरा हाथ से जरा उतावड़ हो गई, तो मेरी थोड़ी निष्काळजी हो गई, मेरी गलती हो गई, तो कांच का ग्लास टूट गया। तो ऐसा हमें अंदर बाहर बोलने का और अंदर से क्या रखने का, अपने कि ऐसा ही अपनी जो प्रकृति है उसको हमें उसके साथ बातचीत भी करने का कि भाई ये होना नहीं चाहिए, दोबारा काळजी लेना चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। मगर अंदर ज्ञान क्या बताता है? हुआ सो न्याय। तो अपने लिए जो दूसरे से हाथ से टूट गया तो हुआ सो न्याय बोल सकते, अपना हाथ से टूटा तो हम हुआ सो न्याय बाहर नहीं बोल सकते, अंदर ज्ञान में रख सकते, वो भी हुआ सो न्याय है। मगर अपनी गलती दिखेगी नहीं, अपने बाहर बोलेगे ने हुआ सो न्याय, तो अपनी खुद की गलती दिखेगी नहीं। इसलिए ये समझने की बात है कि यदि समझेंगे तो आप इस जगत से छूट जाएंगे। क्या समझना है? भाई कुदरत का न्याय क्या है कि जो अपने साथ जो जो संजोग आता है वो अपना ही बना हुआ ही कुदरत, पराई नहीं है, कुदरत अपनी बनी हुई है। इसलिए दादा भगवान ने बताया यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, नो बडी एल्स। तो जैसे कंप्यूटर की ये कुदरती शक्ति है, कंप्यूटर है, फॉर एग्जांपल देने के लिए कंप्यूटर कहते थे, जो जो अपने कंप्यूटर में फीड करते हैं डेटा, तो ये डेटा अंदर गया और मैकेनिज्म अंदर हुआ और उसका रिजल्ट जो आता है तो हमने ही डाला है डेटा। तो ये कंप्यूटर में तो वायरस भी आ जाएगा, मगर ये कुदरत का कंप्यूटर कैसा है? समष्टि कंप्यूटर, जो जो हमने डेटा डाला है, यानी कि जो कर्म किया है वो कुदरत के समष्टि कंप्यूटर में गया और उसका रिजल्ट हमें अभी ये अवतार में पूरे कितना अवतार का सर्वैया ट्रायल बैलेंस के हिसाब से भी ये अवतार में जो जो अपने साथ अच्छा बुरा होता है वो कुदरत के न्याय स्वरूप है। फिर होने के बाद बोलना है, पहले नहीं बोलने का, ये समझना का जरूर है। यदि समझेंगे तो आप इस जगत से छूट जाएंगे, नहीं समझेंगे तो दूसरे को कर्ता मानेंगे, दूसरे को दोषित मानेंगे और पजल खड़ा होगा। तो ये बताने चाहते हैं, बराबर है? तो मैं चाहता है डेली लाइफ में ये कैसे यूज कर सकता है? डेली लाइफ में जो जो संजोग आता है तो संजोगों कैसे आता है, कितने भी साइंटिफिक सरकमस्टेंस, चाय आई तो चाय तो कभी टाइम सर आती है, कोई बार 6 बजे भी आ जाती है,
कोई बार 8 बजे भी आती है, कोई बार नहीं भी आती है। तो चाहे आना, नहीं आना, टाइम सर आना, लेट आना, तो कितने भी सारे संजोग इकट्ठे होते हैं तो हमें चाय प्राप्ति होती है। कभी मनीष कभी दादा, ऐसा मनीष दादा, तो ये मोनिका का तो प्रॉब्लम है कि वो जो सुबह मम्मी ब्रेकफास्ट करती है, जो देती है, हाँ वो आफ्टर टाइम पसंद नहीं होता है। हाँ, वो तो अपने जो ब्रेकफास्ट आता है तो हमें हर टाइम मनपसंद होना जरूरी नहीं है। वो कितने भी साइंटिफिक सर्कमस्टेंस, वो खाने वाले का जो अंदर परमाणु है, इच्छा है यानी कि पूर्व की, इनके हिसाब से वो नाश्ता बनता है। जैसे परमाणु अंदर है ऐसा ब्रेकफास्ट बनता है, पौवा बनता है, ठेपला बनता है, पूड़ा बनता है, ये ब्रेड बनती है। तो जैसे से अपने अंदर वो परमाणु अंदर खींचता है, उसके हिसाब से अंदर आता है। मुझे परमाणु आया कैसे? पूर्व में जो अपने बिलीफ काम की कि ऐसी मेरे को ब्रेड चाहिए, बटर, ब्रेड बटर ही चाहिए, दूसरा नाश्ता नहीं करेंगे। तो इसके हिसाब से अभी वो ब्रेड बटर आती है। मगर हमें अभी क्या लगता है कि अभी तो ये नया जमाना है, ब्रेड बटर तो पुराना हो गया, अभी तो मुझे लेटेस्ट गरम गरम चाहिए, ये ठंडा नहीं चाहिए। पर जो आता है तो कभी कभी हमें पसंद नहीं होता है नाश्ता। क्यों? वो नाश्ता जो आता है वो अपने ही बिलीफ, अपने ही साइन किया है, वही परमाणु के हिसाब से अपने नाश्ता प्राप्त होता है। कोई भी चीज, एक ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, ये चाय नाश्ता है, यानी कि कोई भी चीज वापरते हम, कपड़ा है, उठना बैठना, घर है, श्वास लेते, जो भी पैसा है, दागीना है, जो जो चीज पढ़ाई है, जो जो हमें प्राप्त होता है, वो अपने ही साइन किया है। ऐसे मुझे पढ़ना है, ऐसा माँ बाप चाहिए, ऐसा भाई बहन चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ऐसी तरह से मुझे खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, जो भी है अपने पूर्व में साइन किया, उसके हिसाब से ये सभी चीज की प्राप्ति होती है। मगर अभी हमारी बिलीफ क्या है? दूसरे का मकान देखा, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, इतने सारे सोफा सेट, डेकोरेट, इंटीरियर डेकोरेशन, तो हमें पिछली बिलीफ में तो हम वो लाए थे, इसलिए वो 2 रूम प्राप्त हुई, सामान्य फैसिलिटी प्राप्त हुई, हाई फाई नहीं हुई। पर दूसरे का हम देखते हाई फाई और बड़ा घर, बंगला, तो हमें अंदर से चुन चुन होता है कि मेरे पास इतना बड़ा बंगला होगा, मेरे पास इतना पैसा होगा, मेरे पास इतनी फैसिलिटी होगी तो कितनी मजा आएगी। मगर वो पुण्य के हिसाब से ये सब की प्राप्ति होती है। मतलब अपना ही पुण्य का और पाप का के हिसाब से सभी सुख सगवड़, सभी रिलेशनशिप, सगे संबंधी, हमारा मन, बुद्धि, चित, डिस्चार्ज, अहंकार, अपनी प्रकृति भी पूर्वक ही बनी हुई है। ये सब बहुत सूक्ष्म चीज बात है। तो तो ऐसे जो जी प्राप्ति होती है, अपना ही करेला कर्म, अपना ही जो कॉज किया हुआ है, वो उसकी इफेक्ट ये अवतार में आती है। मगर हमें अभी वो पिछली बिलीफ और नई बिलीफ दोनों का कॉन्फ्लिक्ट खड़ा रहता है। मान्यता का, वो मान्यता पूर्वक ही है, नई मान्यता देख देख के अपने खड़ी होती है, नहीं मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। तो तो दादा भगवान ने महेश क्या? दादा, हाँ अभी हाँ, खुशी को पूछेगा, खुशी आपको क्या प्रॉब्लम रहता है? मोनिका का तो खाने का प्रॉब्लम, वो तो सबको मालूम है, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा करिश्मा के साथ ज्यादा होता है। क्या होता है करिश्मा के साथ? वो जो मोनिका, भी बोल, मोनिका क्या बोलती है? मोनिका ना बोलती है? नहीं, मैंने कहा स्टडीज में भी होता है इसलिए। अच्छा, वो दोनों बताए ना। हाँ। तो करिश्मा के साथ ये होता है, वो जो भी बोलती है मैं उसे टोकती रहती हूँ।
वो फिर ज्यादा बोलने लगती है मेरे ऊपर, तो इरिटेट होकर मैं भी बोलने लग जाती हूँ पीछे पीछे। हम्म। और स्टडीज में मन नहीं लगता है? हाँ, वो जब एग्जाम होता है तो अच्छे से पढ़ लेती हूँ, बट घर में नहीं होता। ओके यश दादा, दो चीजें तो जरा उसको जादू करो, निकल जाएगा। हम्म। तो करिश्मा के साथ जो कुछ भी नेगेटिव होता है ना आपको, वो बोलती है तो आपको पसंद नहीं है। कुछ भी करती है तो आपको इरिटेशन होता है, हेजिटेशन होता है, कि जो नाराजगी होती है। तो अपने पॉजिटिव लेने का, कि कोई बोलने वाला तो चाहिए, अपने को डांटने वाला चाहिए। अच्छा नहीं लगे, किसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि प्रकृति को अच्छा नहीं लगता है। तो अभी प्रकृति तो अपनी अपनी बिलीफ से बनी हुई है, तो अपने तो कितना पॉजिटिव लेना, कि करिश्मा जो कुछ बोलती है वो मेरे अच्छे के लिए बोलती है, मेरी भूल सुधारने के लिए बोलती है। दैट इज प्लस पॉइंट। कोई भी डांटे, कोई भी अपना कुछ भूल दिखावे, कोई भी अपनी प्रकृति को छंछेड़े, यानी कि तू ऐसी है तैसी है, जो भी आपको अंदर से किसको अच्छा नहीं लगता है, तो कि अपना मन को अच्छा नहीं लगता है। तो हमें ये पॉजिटिव ले गए कि क्यों आप चिल्लाते हैं, मन के साथ आप बातचीत करेंगे कि क्या दिक्कत है आपको। वो बोलने वाली करिश्मा है नहीं, उसकी टेप रिकॉर्ड बुलाती है उसको। वो स्वतंत्र करता नहीं है, वो संजोगाधीन है। मेरा ही कर्म के हिसाब से उसको बोलना पड़ता है। वर्तन में नहीं आवे, मगर अंदर की समझण तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। समझण क्या कहते हैं, अंदर अंडरस्टैंडिंग, ते हुआ सो न्याय। जो हुआ तो करिश्मा से बोलने का, बिहेवियर का, के सोचने का, वो मेरा कर्म का उदय है, मेरा ही हिसाब है। तो हुआ सो न्याय किधर गया? तो हो गया करिश्मा का जो वाणी वर्तन मनन, आपके साथ जो व्यवहार हो गया, वही न्याय है। तभी न्याय कहाँ ढूंढते हैं? मन में ढूंढते हैं। करिश्मा ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरे साथ की वो, मैं तो सही हूँ, उसने मेरा, वो मैं गलत हूँ, ऐसा वो सोचती है। हकीकत दादा भगवान ने क्या बताया, कि गलती दूसरे की देखने की नहीं है, आप बिल्कुल सही है। मगर दादा भगवान ने क्या बताया, कोई टकोर करते, कोई बताते, यू यू आर रॉन्ग, यू आर कमिटिंग दिस मिस्टेक। तो हमारी अगर मिस्टेक नहीं है तो भी क्या, हमें कबूल करना चाहिए कि सामने वाला निमित्त है, निर्दोष है। कोई निमित्त की वजह से दादा भगवान को नहीं बोला कि आप चोर है, तो दादा भगवान चोर थे नहीं। तो उसने क्या बोला, दादा भगवान आपके कोट के पीछे लिखा है, और किसने लिखा, वो कुछ कुछ पता नहीं कराया, दादा ने खाली बोला यू आर करेक्ट। कोई भी अपने को अपनी गलती दिखाते, टकोर करते, जो भी करते करिश्मा आपके साथ, तो अंदर से तो रहना चाहिए ना, यू आर करेक्ट। चलो बाहर से नहीं बोल सकते, बाहर से आप फुफाड़ा भी मार सकते कि चलो क्यों करिश्मा, मैंने क्या तेरा बिगाड़ा है, ऐसे टकोर मार सकते। मगर अंदर क्या समझना है, आई एम रॉन्ग, यू आर करेक्ट, जो आगे बढ़ने का है। तो खुद की गलती नहीं है तो भी, कौन सी गलती है अपनी, तो कि उसने टकोर किया, एक संजोग है, टकोर करने का निमित्त है। तो कुछ न कुछ मेरी पिछले भव की, तो ये भव की नहीं है, चलो मान लिया, पिछली भव की के पिछले सालों की कुछ गलती है मेरी, तो मुझे याद नहीं है। मगर सामने वाला करिश्मा राइट है, आई एम रॉन्ग। अगर सही है तो भी अंदर से तो रॉन्ग करने का है। इसलिए दादा भगवान ने क्या बताया, बिग जीरो और बिग क्रॉस अपने प्रकृति के लिए, बिग जीरो और बिग क्रॉस। कुछ मुझे बलिवार नहीं है, कुछ आता नहीं है, मैं लघुतम भाव, मैं सही हूँ, वही अहंकार बोलते। कभी भी अपने खुद को सही मान के दूसरे की गलती नहीं देखना। सही कौन है? वो बोलने वाला सही है। अपने क्यों
अब हमारी क्यों गलती है? अगर अब सही है तो आपको कोई बोलेगे नहीं। दादा भगवान को आए कोई बोलने के लिए? कोई आया नहीं। तो भी उनको संजोग आए। कभी महाराज साहब बड़े बड़े आए, दादा भगवान, आप दादा भगवान कहलाते हैं, आप खुद भगवान हो गए। तो दादा ने बोला कि नहीं, यू आर राइट, आई एम नॉट गॉड, आई एम एम पटेल, गॉड इज विद इन मी, आई एम नॉट गॉड, यू आर करेक्ट। ऐसा करके कभी भी वो सामने वालों को रॉन्ग नहीं बोला कि आपकी नज़र में ऐसा लगता है तो ठीक है, हम खुद को भगवान नहीं कहलाते, हम एम पटेल है, अंबालाल मुर्जी भाई पटेल है, हम खुद गॉड नहीं है। यू आर करेक्ट, हम दादा भगवान नहीं है। दादा भगवान तो अरूपी है, जो आपको दिखाई नहीं देगा, वही दादा भगवान आपके अंदर बैठे हैं। और आपको भी खुद भगवान है, मगर आपको मालूम नहीं हो, और मेरे अंदर भगवान प्रकट हो गए, आपके अंदर प्रकट नहीं हुआ। बस ओनली दिस डिफरेंट। और सामने वाले को कभी भी रॉन्ग नहीं। दादा भगवान एक सेंटेंस बताया, ऑल आर करेक्ट बाय देयर व्यू पॉइंट बट फैक्ट इज डिफरेंट। वो बहुत बड़ी बात है। तो सभी एंगल से हम समझना चाहिए, बराबर है। अब अभी ये स्टडीज में वीक एग्जाम होता है तब मैं सीरियस होती है, अदरवाइज नहीं करती। तो इसके बारे में कुछ बोलो। क्या? हाँ, उनको बोलने का है। स्टडी, खुशी को स्टडी ऐसे मजा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, पर एग्जाम आते हैं तो स्टडी करता है, तो इसलिए उसका ग्रेड्स अच्छा नहीं आता है। मुझे समझता है? बताना है। समझ? हाँ हाँ, हाँ, अरे प्रॉब्लम, अरे हाँ, पहले से स्टडी નથી કરતી અને એક્ઝામ ટાઈમ સ્ટડી કરે છે એટલે हो। तो पहले आपको क्या है, बहुत स्टडी करने की इच्छा नहीं होती है, ऐसे अपने को आलस है, प्रमाद है, कुछ भी है। मगर जब एग्जाम नजदीक आती है ना, हम जब जागृत हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि अपना कोर्स इतना बाकी है, रीडिंग रिपीटेशन इतना बाकी है, अभी मैं एग्जाम में क्या लिख सकूंगा, और मेरी कैसी तैयारी है। तो हम क्या, जैसे जैसे नजदीक आएगी परीक्षा, एग्जाम, तो हम खुद जाग जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। अभी इतना बाकी है पढ़ाई, ये क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या लिखूंगी। तो इस तरह से हम, ये एग्जाम से पहले स्टडी होना चाहिए। कभी भी मेरी एग्जाम ले लो, ये ज्ञान भी अपने को एक एग्जाम है, ये संसार भी अपनी एग्जाम है। तो अब जब संजोग आएंगे तो हम तैयारी करेंगे। नहीं, पहले से तैयारी करने के, जब भी जो भी आज परीक्षा लो, वी आर रेडी। इस तरह से ज्ञान में भी अपनी एग्जाम में, जैसे आपकी स्टडी में एग्जाम में आप आराम से तैयार करते हैं, तो आपको ऐसी आप उतावड़ और सब भूल जाएंगे जो जल्दी जल्दी में। तो हम पहले से प्लानिंग करना चाहिए, इतना रीडिंग, इतना कोर्स, इतना क्वेश्चन पूछेंगे। हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, इतना क्वेश्चन तो आने वाला है। जो पास्ट जो आंसर बुक होती है ना, तो हम रिफर करते 3-4 साल की, इतने इतने क्वेश्चन रिपीटली होता है। तो अपने एक क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि नहीं, खुद बिना किताब में देख के कितनी लाइन लिख सकते हैं, कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं खुद, ऐसी तैयारी हम करते थे। फिर एग्जाम के दिन तो कैसे हम सब कवर करेंगे, तो इमोशनल हो जाएंगे। हम शांति से तैयारी करने की, बराबर है। खुशी हाँ पहले से रेडी होता है ना तो बहुत फायदा होता है, यू नो। एवरीडे करने का, वही नियम करने का, एवरीडे ब्रशिंग करने का, एवरीडे करने का। ओके हाँ ओके, हाँ चलो દિવ્યાબેન, તમને શું પ્રોબ્લેમ છે? તમને શું નથી ગમતું? પાસે આવીને બોલો, પાસે આવીને બોલો. કશું નથી ગમતું એવું છે નહીં. ઓ વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. વૈશાંતિ, તમારું ફેસ આપવું પડે ને, તો આ લોકોને પ્રોબ્લેમ હા, થાય વાંધો છે. નહીં, એ તો એમને જરા
ના નજીક ના લાવવામાં. યુટ્યુબ વાળા કે છે આ છોકરાઓ છે ને એડલ્ટ કોણ નથી હા હા હા, બરાબર છે, બરાબર છે, એ प्रॉब्लम कर नाखे છે. બરાબર છે. ओके दक्ष आपको क्या पसंद नहीं है? ओवरऑल आपको क्या पसंद नहीं है? दादा मुझे जैसे मैं एग्जाम के पहले मैं भी पढ़ाई नहीं करता, बस जब एंडिंग का टाइम आता है जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ. वो आपकी खुशी का ब्रदर है. ओके ओवरऑल मेरे को जब कुछ करना होता है मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता है मैं कर पाती हूँ कि नहीं. अच्छा काम के लिए. ओके तो कल ये बात करेगा. ओके कि अभी टाइम हो गया है तो कल आना. जल्दी आना. और दक्ष आपने वीडियो क्यों ऑन नहीं किया था जल्दी? दादा मैं यहीं पे था पर वो हल्का सा अच्छा नहीं लग रहा था. तो हमको मालूम नहीं पड़ता है कि आप उधर है कि नहीं. ओके तो ऑल कम अर्ली टुमारो. ओके ओके. ओके जय सच्चिदानंद. तो ये जरा देखना एवरीडे सुबह से उठ के रात तक कि आपको पसंद नहीं आता है तो उसको रेशनलाइज करने का कि ये क्यों हुआ तो मालूम पड़ जाएगा कि आपका हिसाब है. ओके जय सच्चिदानंद. जय जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदा दिव्या बहन. દીપકાનંદજી અમે કેવા પુણ્યશાળી કાઢો. દીપક દાદા લાસ્ટ મિનિટ અને દીદી પહેલાથી કહી દેવું પડે તમને કાવતાર ફાવે. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા જય સચ્ચિદાનંદ દાદા. જય દીપક સચ્ચિદાનંદ. દીપક can you get it or you want me to get it? દીપકાજી તમે કાઢો છો હું કાઢું? ના અમે તમારે કેવા ચાલુ પડશે પ્લીઝ. ઓકે અમે કેવા પુણ્યશાળી મારે જોવું પડશે શેમાં છે. અમે 23 October. Okay, Anindya બેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે અમે નિહાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી.
અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે આગમ સ્તૂપ થાવો એ માર્ગ મુક્તિનો છે સપ્ત આ સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે આસ્વાદ શ્રુતિનો છે વાંધાને વચ્ચે કાસૌ અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહ મેં નિહાળી જો વિસરાવે છે બેકરારી તેમાંય મિશ્ર ચેતન દાવા કરે કરારી આરોપી માહી જજ કહે છે અમોને આત્મરૂપે જો જીત તારી અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહ મેં નિહાળી સ્વરૂપ લક્ષીઓની અંદર છે શીતલે શ્યા શુદ્ધાત્મની સમાધિ અવગાઢ સુખ સૈયા અવગાઢ સુખ સૈયા અમે નિરાકુળ મુકામી મોક્ષે જઈશું નિશ્ચય વ્યવહાર છે નિકાલી અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની વિભાળી સંયમ પરિણમાવે એ પ્રેમી શુક્લ ધ્યાની તે જ્ઞાન ક્રિયાકારી અહોશ્યાદ વાદ બાની અમે કેવળ જ્ઞાન પ્યાસી દાદાને કાજે આ ભવ દેશું અમે જગાડી અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહ મેં નિહાળી જય સચ્ચિદાનંદ જય સચિદાપદ. કેમ બહુ સરસ ગાયું, મળ્યું બહુ સરસ. કેમ આ મળ્યું આજે? ના એટલે અમે જન્મ જયંતિમાં સુરત ગયા હતા ને હા. ત્યારે પેલા હું અને અપૂર્વા પેલા આ પદ ગાવાના હતા હમ. પણ પછી અપૂર્વાને મેળમાં નો આવે એટલે દીદી જોડે ગાવતો તો દીદીને બીજું પદ ગમતું હતું તો એટલે બીજું ગાયું હતું આ રહી ગયું એટલે ત્યાર આ નક્કી કર્યું ઓકે 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 ઓકે. તો આમાંથી શું સમજણ પડે તમને? પછી પૂછીએ આપણે કે મહેશ આનંદજીને શું તમારે જાણવું છે આમાં. કે આપણે પુણ્યશાળી છીએ ભગવાન આપણને દાદાના રૂપે મળ્યા પછી આપણને મોક્ષે જવાની ચાવી મળી જ્ઞાની પુરુષ પાસેથી આપણે જે વાંધા વચકા છે આપણી જે અજ્ઞાન માન્યતાઓ છે જે પહેલાનો માલ છે એ દાદાએ દૂર કરી આપ્યો ના ના પણ તમે પછી આમાં શું આરોપી વાંચો છો? મહી જજ તમે તો આપણે પછી સમજીએ પણ તમને શું ફાયદો થયો જ્ઞાન લીધા પછી? એટલે આમાં કીધું ને આરોપી માહી જજ જો મારી કઈ ભૂલ હોય તો પહેલા એવું થતું કે ના બરોબર છે મેં કઈ ખોટું નથી કર્યું પણ હવે પાછળથી રિયલાઇઝ થાય છે કે ના ભૂલ હતી
ઓકે, વેરી ગુડ. હવે આમાં શું સમજવું છે તમારે? આ સંયમ પરિણામ આવે વાળું સમજાવો ને લાસ્ટ. હા ને હા હા મશાનજી? વંચાય છે ને મશાનજી? અનમ્યુટ કરો મશાનજી. વેઇટ કરો. હા, વંચાય છે. ઓકે, સંયમ પરિણામ એટલે શું કે બહારના સંયમને સંયમ નથી કહેતા. એટલે ક્રોધ થવાના ટાઈમે આપણે ક્રોધ ના થાય, ગુસ્સો થવાના ટાઈમે ગુસ્સો ના થાય, મોઢું ચડી જવાના ટાઈમે મોઢું ના ચડે, રીસાવાના ટાઈમે આપણે રીસાઈએ નહીં, એને સંયમ કીધો. એવું આ જ્ઞાન એવું છે કે સંયમ પરિણામ પામે એ પ્રેમી શુક્લ ધ્યાની. તે દાદા ભગવાનના જ્ઞાનથી સંયમ પરિણામ પામે એવા કે છે શુક્લ જ્ઞાની. એટલે આપણે શુક્લ એટલે શુદ્ધાત્મા જે પ્રાપ્ત થયું એ શુક્લ ધ્યાન આપણે પ્રાપ્ત થયું. ને સાથે સાથે આપણો અંદર જે સંયમ અંદર પરિણામ પામ્યો. કયો સંયમ? અંદરનો, બહારનો નહીં. એટલે અંદરનો સંયમ ઉભો થયો. અંદર એવું જ રહે કે સામેવાળો નિર્દોષ જ છે, મારી જ ભૂલ છે, સામેવાળો અકર્તા જ છે, હું અકર્તા છું, આખું જગત વ્યવસ્થિતના તાબે છે, કોઈ જાણી જોઈને સંદાસ જવાની પણ એની સ્વતંત્ર શક્તિ નથી. એવું કે છે કે આ જગત જેમ છે તેમ જોયું દાદા ભગવાને. મોટો મોટો સંયમ કયો કે કોઈ આપણને હળી કરે, હલાવે, ફેણ મારે, ઘસાતું બોલે, ગાળો ભાડે, માર મારે, છતાં પણ આપણે સામેવાળો નિર્દોષ દેખાય એ મોટો મોટો સંયમ. અકર્તા દેખાય. સંયમ પરિણામ પામે એવું છે આ શુક્લ ધ્યાન આપણને શુદ્ધાત્મા પદ આપ્યું છે. સંયમ પરિણામ પામે એ પ્રેમી શુક્લ ધ્યાની. તે જ્ઞાન ક્રિયાકારી અહો સ્યાદવાદ માની. એ જ્ઞાન કેવું છે? એટલું બધું ક્રિયાકારી. એટલે દાદા કેવું છે આ જ્ઞાન એની મેરે પ્રજ્ઞા બેસાડી છે, તેની મેરે કાર્ય કરશે. ક્રિયાકારી એટલે એની મેરે જ્ઞાન હાજર થવું, પ્રજ્ઞા ચેતવે અને આપણને આ દાદા ભગવાનનું અક્રમ વિજ્ઞાન, દાદા ભગવાનની બધી વાતો, અથડામણ ટાળજો, બન્યું તે ન્યાય, કે જે એડજસ્ટ એવરીવેર, પોઝિટિવ દ્રષ્ટિ, જે બધા દાદા ભોગવે તેની ભૂલ, આ બધા જ વાક્યો એ કેવા છે? હાજર થાય આપણે જ્ઞાન ક્રિયા. આપણી જ્ઞાન ક્રિયા એટલે જ્ઞાન હાજર થાય એવું કે છે કે આ અક્રમ વિજ્ઞાન છે. સંયમ પરિણામ શાદવાદ વાણી. એટલે આપણી વાણી પણ કેવી? દાદા ભગવાન જેવી શાદવાદ વાણી. એટલે કોઈનું પ્રમાણ ના દુભાય, કોઈ ધર્મનું ના દુભાય, કોઈ વ્યક્તિનું ના દુભાય, કોઈ માટે પણ આમ નેગેટિવ ઊભું ના થાય, એને શાદવાદ વાણી કહેવાય. એવું કે છે સંયમ પરિણામ પામે એવું આપણને દાદા ભગવાન. બરાબર સમજ પડી? ધન્ય. જય સચ્ચિદાનંદ. અવાજ નથી આવતો એનો. જય સચિદાનંદ. કઈ પૂછવું છે સંભળાયું? આમાં? બીજું કઈ સંભળાયું? પૂછવું ના છે? એ ના સંયમ પરિણામ પામે તો આપણે આ અંદરના સંયમ. મહેશાનજી, બોલો. આ છે ને હમ એનું થોડું મોટું કરો. જો વિશ્વના કરારો કરારી. લાવે છે બેકરારી, તેમાંય મિશ્ર ચેતન દાવા કરે કરારી. એટલે શું કહેવા માંગે એનું છે? સાયન્સ ને એનું પ્રોસેસ કેવું ચાલે છે આપણા બોડીમાં? હા, તો આપણે આજે વિશ્વના કરારો એટલે શું? આપણે ઋણાનુબંધનો હિસાબ. એ કરાર એટલે જે આપણે એવું દાવો માળે છે, તેમાંય મિશ્ર ચેતન દાવો કરે કરારી. આ વિશ્વના કરારો એટલે કર્મનો હિસાબ.
લેતી દેતીનો, તમારે જ કોઈને દુઃખ આપ્યું હોય તો તમને દુઃખ આપે, સુખ આપ્યું હોય તો સુખ આપે, એવા વિશ્વના કરારો, એવા રાગ દ્વેષ વાળું, ગમો અણગમો, એ બધા કરારો આપણે જ કરેલા છે. એ કરારો જ લાવે છે બે કરારી. તે બધા સંજોગો જ્યારે સામા આવે છે ત્યારે આપણને ગમતું નથી. કસાતું બોલે તો ગમતું નથી, તો એ બે ગાળો ભાણે તો ગમતું નથી. જ્યાં જ્યાં અણગમો ઉભો થાય, કે જ્યાં જ્યાં રાગ ઉભો થાય, કે દ્વેષ ઉભો થાય, એ વિશ્વના કરારો અંદર આપણે રાગ દ્વેષ કરેલો છે એટલે સામે આવે છે. તેમાંય મિશ્ર ચેતન દાવો કરે કરારી, તો કે આરોપી માહી જજ કહે છે અમોને આત્મા રૂપે જો જીત તારી. એટલે અંદર આ મિશ્ર ચેતન કે છે ત્યાં સંભાળવાનું. એ જીવતી વ્યક્તિ સાથે ટેબલને પછાડો, ટેબલને ફેંકી દો, દાવો નહીં મારે. પણ જીવતી વ્યક્તિ એ દાવો મારશે, તમે મેં તમારું શું બગાડ્યું છે, તમે મને અપમાન કરો છો, મારું ઘસાતું બોલો છો. એટલે મિશ્ર ચેતન જોડે એવી રીતે રહેવાનું, સહેજ પણ એને દુઃખ ના થાય, કારણ કે દાવો કરશે, દાવો મારશે. એટલે કે છે કે આપણે પહેલા જે બધું રાગ દ્વેષ કરેલા, ખોટા કામ કરેલા, લોકોને દુઃખ આપેલા, અણકનું બધું લઈ લીધેલું, એ અત્યારે એ કરારો, એ કોન્ટ્રાક્ટ, એવા જે બધા આપણને હવે આપણા જ કરેલા કર્મનું એ વિશ્વના સામે આપણે, એટલે જગતની સામે એ બધા સંજોગો, એ કરારો આપણને ક્લેમ હિસાબ ચૂકતે કરવા માટે બધા સંજોગો, એ બે કરારી બધા હિસાબો ભેગા થાય. એમાંય પાછા મિશ્ર ચેતન જોડે બહુ સાચવી લેજો કે છે. આરોપી માહી જજ કહે છે અમોને આત્મા રૂપે જો જીત તારી કે છે. અંદર આત્મા સ્વરૂપ આપણે થઈ જઈએ તારી જીત છે. એટલે અંદર પેલું આરોપી માહી જજ શું કે છે, જજમેન્ટ શું આપે કે તું આત્મામાં રહેજે, તું આ પ્રકૃતિના ભાગમાં ના રહીશ તો તારી જીત છે. બરાબર? બરાબર. હા. બીજું કઈ છે અનન્ય? ના. તો હવે શું ચાલી રહ્યું છે એક્ઝામ? ના, અત્યારે તો વેકેશન છે. મારી ફાઇનલ એક્ઝામ દિવાળી પહેલા જ પતી ગઈ હતી, એટલે 1 month નું વેકેશન હતું. ફાઇનલ એટલે ફાઇનલ એક્ઝામ એટલે એટલે સેમિસ્ટરની ફાઇનલ એક્ઝામ ત્યારે અચ્છા, સેમિસ્ટર ને. ઓકે, સેમિસ્ટર. મેં કહ્યું આખું વર્ષ પૂરું થઈ ગયું કે નહીં? ના ના. ઓકે, સેમિસ્ટર. Yeah. હવે પાછું ક્યારે શરૂ થાય સેમિસ્ટર? નેક્સ્ટ મંડે. ઓકે ઓકે ઓકે, ચાલો, વેરી ગુડ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય દીપકાનજી, Yes, are you there? कुत्ते आए yes, I हैं. am. ओके, I'm there. My एक मिनट. internet is not working, so I'm on phone. और तो પછી આ વિડિયો બંધ કરી દો ને. Ah, yes. એક મિનિટ, આપણે મારે સ્ટોપ